عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اگلے حصے کی طرف میں آج مخاطب ہوتا ہوں۔ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، شعبان کا مہینہ تھا۔ مکہ میں عبد المطلب کی بیٹی عاتکہ نے ایک سپن دیکھا۔ سپن بڑی ہی ڈراونا تھا۔ عاتکہ گھبرا گئیں، بھے سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ پر سوار ہے، وہ تیزی سے بڑھا چلا رہا ہے۔ پھر ابتہ پہنچ کر وہ رک گیا اور زور سے چلایا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ جمع ہو گئے۔ پھر وہ آدمی کعبہ میں داخل ہو گیا۔ لوگ بھی پیچھے پیچھے ہو گئے۔ جب لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے، اچانک اسے لے کر اونٹ کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا۔ پھر وہ زور سے چلایا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر اس کا اونٹ ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، ابو قبیس نامک پہاڑ پر۔ وہاں پہنچ کر وہ آدمی پھر زور سے چلایا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر اس نے ایک چٹان اٹھائی اور پوری طاقت سے زمین کی طرف پھینکی۔ چٹان زمین پر گرتے ہی چورا چورا ہو گئی۔ اس کے ٹکڑے چھٹک کر مکہ کے سارے گھروں میں پہنچے، کوئی بھی گھر اس سے نہ بچا۔ عاتکہ نے اپنے بھائی عباس کو بلایا، ان کو اپنا سپن سنایا۔ سن کر وہ بولے، دیکھو بہن، اب کسی سے یہ سپن بیان نہ کرنا۔ یہ سپن کسی سے کہنے کا نہیں، لیکن عباس سے خود ہی نہ رہا گیا۔ انہوں نے ایک دوست سے بیان کر دیا۔ دوست سے کہنا تھا جنگل میں آگ کی طرح۔ یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو بھی معلوم ہو گئی۔ انہوں نے سنا تو عاتکہ کا خوب مذاق اڑایا۔ ابو جہل نے مذاق اڑاتے ہوئے عباس سے کہا، واہ واہ، اب تک تو سارے یہاں کے مرد ہی نبی ہو رہے تھے، اب عورتیں بھی نبی ہونے لگیں۔ لیکن عاتکہ کا سپن سچا نکلا۔ زمزم 3 دن کے بعد مکہ پہنچا۔ مکہ پہنچ کر اس نے اونٹ کے دونوں کان کاٹ دیے، اپنی قمیص پھاڑ ڈالی، قصابے کا رخ بدل دیا اور چلایا، قریش کے لوگوں، لوئی بن غالب کے سپوتوں، تمہارا قافلہ آ رہا ہے، مشک اور سگندھ سے لا رہا ہے، اور بھی بہت سا سامان لا رہا ہے، بڑھ کر اسے بچاؤ، محمد اور اس کے ساتھی اسے لوٹ نہ لیں، دوڑو دوڑو، مدد کے لیے دوڑو، اپنا سامان بچاؤ۔ عرب کے سوابھیمان کا حال کسے نہیں معلوم۔ اگر کوئی ویکتی کسی کے ہاتھ سے قتل ہوتا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا اور دیکھتے دیکھتے یدھ کی آگ بھڑک جاتی۔ دونوں طرف سے ٹڈی دل امڑ آتا اور خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ پھر یہ لڑائیاں سالوں تک چلتی رہتی، قبیلے کے قبیلے کٹ جاتے، کٹمب کے کٹمب برباد ہو جاتے، لیکن یہ لڑائیاں بند ہونے کا نام نہ لیتی۔ عرب نے لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، لیکن مقتول کا نام کاغذ پر لکھا جاتا اور نسلوں تک بچوں کو یاد کرایا جاتا تاکہ وہ بڑے ہوں تو اس کا بدلہ لیں۔ داہش اور بسوس کی تباہ کن لڑائیاں عرب میں مشہور تھیں، 40 سال تک قائم رہیں اور ہزاروں لاکھوں جانیں ان کی بھیٹ چڑھ گئیں۔ ان کا سبب بھی یہی تھا۔ رجب سن 2 ہجری کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے 12 آدمیوں کو نخلہ کی گھاٹی میں بھیجا تاکہ وہاں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگائیں۔ اتفاق سے قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ ادھر سے گزرا۔ ان لوگوں نے اسے لوٹ لیا۔ ایک آدمی کو
कत्ल और 2 को बंदी बना लिया। कत्ल होने वाला आदमी अम्र बिन हज़रमी था। आमिर बिन हज़रमी का भाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह मालूम हुआ तो आप बहुत नाराज़ हुए और फरमाया, मैंने तुम्हें इसलिए तो नहीं भेजा था। उधर कुरैश को मालूम हुआ तो वे गुस्से से पागल हो गए। इंतकाम की आग उनके दिल में भड़क उठी। अब वे युद्ध के लिए तत्पर थे और रात दिन इसी की फिक्र में रहते। जमजम की पुकार ने जख्म पर नमक का काम किया और गुस्से की आग को और भी भड़का दिया। अब वे जोश से बेकाबू हो गए और लड़ाई की तैयारी करने लगे। उन्होंने जल्दी जल्दी बहादुर सिपाहियों को जमा किया, ऊँट घोड़ों का इंतज़ाम किया। सारे लोग जल्द से जल्द तैयार हो गए। जिसे देखिए गुस्से से बेताब था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टक्कर लेने पर दूसरों को उभार रहा था। उनके जोश का यह आलम था कि हर आदमी लड़ाई पर जाने के लिए बेताब था और जो नहीं जा सकता था वह अपनी ओर से आदमी भेज रहा था। कुरैश के सारे सरदार इस मुहिम में शरीक थे, किंतु अबू लहब की हिम्मत न हुई। उसने 4000 दिरहम पर एक आदमी को तैयार कर लिया और अपनी जगह उसे भेज दिया। अगर कोई जाने से जी चुराता तो साथी बिगड़ते और उसे शर्म दिलाते, कहते तो तुम तो औरत हो, घर में घुसे रहने के आदी हो। आखिरकार उसे शर्म आ जाती और वह जाने के लिए तैयार हो जाता। कुछ लोग जोश दिलाने और जज्बात को भड़काने में आगे आगे थे। सुहैल नामक एक सवार भी उन्हीं में था। उसने कुरैश के लोगों से कहा, गालिब के बेटों, क्या तुम पसंद करते हो कि मुसलमान हमारे काफिलों को लूट लें, हमारे सारे सामान पर कब्जा कर लें, तमाम ऊँटों को हका ले जाएं, और फिर अगर किसी को माल की ज़रूरत हो तो माल हाजिर है, किसी के पास हथियार ना हो तो हथियारों की भी कमी नहीं है। कुरैश 950 आदमियों के साथ निकले। साथ में 100 घोड़े और 700 ऊँट भी थे। पैदल फौज लोहे की डूबी हुई थी। इसके अलावा 100 कवच थे। साथ में गाने वाली औरतें भी थीं। ये बदकिस्मत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशिष्ट काव्य पढ़ती और इस तरह सिपाहियों के गुस्से की आग को भड़काती। दुश्मनों का ये लश्कर अकड़ता हुआ चला। हर एक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दांत पीस रहा था और गुस्से से होंठ चबा रहा था। अब उनका मकसद केवल यही नहीं था कि अपने काफिले को बचा लाएं, बल्कि उनका इरादा था कि इस आए दिन के खतरे को हमेशा के लिए दबा दें। मदीने में जो ताकत जमा हो रही थी उसे कुचल डालें ताकि कारोबारी मार्ग बिल्कुल महफूज हो जाए। उधर अबू सुफियान काफिलों को लेकर आगे बढ़ा। बढ़ते बढ़ते हिजाज से बहुत करीब हो गया। भयभीत तो था ही, अब आगे की खबरें मालूम करने लगा कि कहीं मुसलमानों की पकड़ में ना आ जाएं। फिर वह जमजम का इंतज़ार करने लगा। उसका विचार था कि जमजम आ रहा होगा और साथ में कुरैश भी मदद के लिए आ रहे होंगे, लेकिन कोई ना आया। जब वह रात आई जिसमें उसे बद्र नामक जल स्रोत पर पहुंचना था तो ऊँट तेज़ी से पानी की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि पानी की उन्हें कोई ज़रूरत न थी। वह एक ही दिन पहले खूब पानी पी चुके थे। काफिले वालों ने यह माजरा देखा तो घबरा गए। वे सोचने लगे कि अब तक तो ऊँटों ने कभी ऐसा नहीं किया था, आज क्या बात है। रात भी बड़ी अंधेरी थी, निगाह कुछ भी काम नहीं कर रही थी। इससे उनकी घबराहट और बढ़ी और डर से बुरा हाल हो गया। अबू सुफियान ने अब रुख बदल दिया। उसको डर था कि मुसलमान ताक में होंगे। उसका ख्याल था कि वे बद्र के पास ही छिपे होंगे। उसने अब दूसरा रास्ता पकड़ा। बद्र से हटकर अब वो समुद्र के तट पर चलने लगे। बद्र अब बाईं ओर था और अबू सुफियान तेज़ी से मक्का की तरफ बढ़ रहा था। कुरैश मक्का से रवाना हो गए। रास्ते में जहाँ पानी देखते पड़ाव डाल देते, ठहर कर ऊँट ज़िब्ह करते, खुद खाते दूसरों को खिलाते, शराब के दौर चलते, फिर वे वहाँ से आगे चल देते। इसी तरह वे खाते पीते ऐश मनाते घमंड से अकड़ते चले जा रहे थे कि मक्का के एक आदमी उनके पास पहुँचा। उसने कहा, भाइयों, अब मक्का लौट चलो। काफिला बिल्कुल सुरक्षित लौट आया। मोहम्मद और उनके साथियों के
हाथ नहीं लगा। भलाई इसी में है कि अब लौट चलो, मदीना वालों से टक्कर लेने की मत सोचो, वे हमें ककड़ी की तरह काट कर रख देंगे। कुरैशी भाइयों, अब आगे ना बढ़ो, काफिला तो बच गया है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तुम तो काफिले ही को बचाने निकले थे, अल्लाह ने उसे खुद ही बचा लिया। उस आदमी ने यह बातें उन्हीं के भले के लिए कही थी, लेकिन वे ये सब सुनने के लिए बिल्कुल तैयार ना थे। ज़्यादातर लोग ने साफ इनकार कर दिया। हाँ, बनी हाशिम कबीले की समझ में ये बातें आ गई। उन्होंने वापस मक्का लौटना चाहा, मगर अबू जहल बिगड़ गया। उसने कहा, नहीं, खुदा की कसम, हम हरगिज़ नहीं लौटेंगे, हम तो बद्र तक जाएंगे। बद्र एक गांव है जहां अज्ञान काल में हर साल मेला लगता था, मदीना से लगभग 80 मील की दूरी पर है। वो आदमी अबू सुफियान के पास वापस मक्का लौट आया और उसे सारा किस्सा सुनाया। जो कुछ बातें हुई थी सब बयान कर दी। अबू सुफियान ने यह बात सुनी तो उसे बहुत अफसोस हुआ और खुद ब खुद उसके मुख से ये शब्द निकले, हाय मेरी कौम, यह सब अबू जहल का किया धरा है। वह लौटने पर तैयार ना हुआ क्योंकि वो आज लोगों का सरदार बना हुआ था। उसने लोगों के साथ ज़्यादती की है, उसने अपनी हरधर्मी से काम लिया है। सबकी भलाई की बात थी जो उसने ठुकरा दी, दूसरों की ना मानी, दूसरों की ना सुनी। बहुत बड़ा ऐब है, इसका अंजाम तबाही और बर्बादी है। सदक़ल्लाहुल मौलाना।